Okay, today our topic will be pronoun. What will be our topic? Pronoun. I hope you have primary knowledge of pronoun. You have to pay attention to the topic pronoun because it will help you a lot to understand the topic determiners. That will in the syllabus of class 9 and 10, right? And pronoun topic will also very beneficial for class 7 and 8. It will directly come in the name of chapter as a pronoun, but for class 9 and 10 in the chapter it will help you as a determiners. Okay, so you have to pay attention as a pronoun today. So will you answer me what is a pronoun? Okay, who will answer? Very good, sit down. Okay, so he has answered very well. it it is a word, it is a word that is used in place of a noun. That is used in place of a noun. In place of a noun. You can also use instead. In place of, you can use instead of. In place of, equal to, instead. So it is a word. Pronoun is a word that is used in place of a noun. Come in. Pronoun is a word that is used in place of a noun. You can also write the definition of pronoun. It is a word that is used to check or stop, to check or stop the repetition of noun, the repetition of noun in a sentence. Okay, is that clear? So you can learn any one definition according to your convenience. Pronoun is a word that is used in place of noun or instead of noun. You can also write it is a word that is used to check or stop the repetition of a noun. We use pronoun so that we can check. What is the meaning of check? The meaning of check is stop. What is the meaning of check? ये जो चेक है, इस चेक का मतलब होता है स्टॉप करना. क्या करना? एक तो हो गया स्टॉप करना, दूसरा होता है किसी भी चीज को अच्छे से क्या करना, एग्जामिन करना, जांच करना. जैसे कॉपी को चेक किया जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक का मतलब है एग्जामिन करना. क्या करना? एग्जामिन करना. So here it is a word that is used to check or stop the repetition of a noun in a sentence. Let's see example. Suppose I have bought a new watch. The watch was very costly. The watch is very costly. The watch is very costly, but the watch was, the watch is stolen by Aditya. I don't know who is Aditya. No one? That's good. Okay. So you can see that I have used here 3 times watch. First, second, and third. I have bought a new watch. The first one is correct. In the first sentence I have used watch, correct. In the second it is also correct. In the second it is also correct. According to article, the second one is correct. Because in the first one we have used article a, in the second one we have used article the. So in the first and second place watch is correct, but in the third we have repeat the same noun. So what will we do? In place of that watch we will use it. Here it is a pronoun. Here it is a pronoun. Let's see. I killed the birds.
The birds were, I killed the birds. The birds are very small and helpless. Very small and helpless. I feel pity. I feel pity for the birds. I feel pity for the birds. I feel pity for the birds. You can see that I have used the birds, and again the birds. I have used the birds 3 times. So we will leave the first one and in the place of second and third one, which word we will use? In place of birds, we will use they. Because here it is not a bird, it is more than one bird. So here we will use they. In the same, what we will write here? Them. Because it is not a subject, it is an object. The object of they is them. Okay? So now you have understood why we use pronoun. We use pronoun so that we can check or stop the repetition of a noun in a sentence. Okay? Otherwise, if you write like that, the sentence is correct, but it shows that you have a lack of knowledge in English. ये सेंटेंस करेक्ट है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस रॉन्ग है, बट ये शो कर रहा है कि आपकी जो नॉलेज है इंग्लिश के प्रति वो क्या है, थोड़ी सी कमजोर है. ओके, at first write that first two, then again we will see the kinds of pronoun. Have you written? Those who have already written, there is no need to write. Okay, those who have already written, there is no need to write. Just they try to learn. वो सीखने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे. Haven't you present in the first class? Haven't you present in the first class on Monday? On Monday, on Monday, was you on Monday? Were you present? So I hope you have written. So if you have written, there is no need to write. Just try to understand. Who who is going to deliver a speech today? Whose turn it is? Have you prepared? Good. Now I have. I think it is the third time. It is the third time, and I hope that the third time will be the best. In the first and second, I have seen that the student is trying to copy from putting the page putting the page down. No, you are forgetting because you are not paying or stressing upon your topic. That's why you are forget. If you stress upon your subject, you will not. Why have you come late? Have you written? It's very easy. Shall I go ahead? Let them write. Also write example. Now shall I?
You are taking too much time, most of you. Write the examples. Take only 1 minute to write. You are not writing. Oh, you have already written. Have you written? Okay, I will soon visit. So will anyone tell me how many kinds of pronoun are there? 10. There are 10 kinds of pronoun. What is the meaning of? Pity. Feeling sad. Pity means feeling sad. Pity, pretty, palty. There is there is a word pretty means beautiful. There is a word palty, less important. Okay. Pity, feeling sad. Pretty, beautiful. Palty, less important. If something is paltry, it means it is less important. So the question is that how many kinds of pronoun are there? How many kinds of pronoun are there? Someone has answered there are 10 kinds of pronoun and it is correct. There are 10 kinds of pronoun. There are 10 kinds of there are 10 kinds of pronoun. Okay, the first one is personal pronoun. The first one is personal pronoun. Second, demonstrative. Demonstrative. Next, distributive. Distri, distributive pronoun. Next, possessive pronoun. Possessive pronoun. Next, emphatic. Emphatic is also known as emphasizing. Emphatic is also known as emphasizing. Next, 561, reflexive pronoun. Which one? Reflexive pronoun. Next, interrogative. Next, relative. Next, reciprocal. And the last, indefinite pronoun. Which one? Indefinite pronoun. Remember once again, you have to be careful to read pronoun because you have to read most of the pronoun part in determiners. Okay? Suppose अब इसमें हमको क्या करनी है, जैसे इसमें एक है पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज हमको जाननी है क्योंकि ये सारा का सारा हम लोग जितने भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें पर्सनल प्रोनाउन का बहुत यूज है. उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजेसिव, एम्पैटिक, रिफ्लेक्सिव. एम्पैटिक और रिफ्लेक्सिव को हटा दीजिए. इंटेरोगेटिव एंड इंडेफिनिट. ये सारे इसमें कितने हो गए? 5 हो गए ना. ये जो 5 है आपको डिटरमिनर्स में पढ़नी है. किसमें पढ़नी है? डिटरमिनर्स में.
तो इस 5 को और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसका पार्ट जो है आपको डिटर्मिनर में रिपीट करनी है। ओके, और सेम है डिटर्मिनर्स में भी अंतर कुछ स्ट्रक्चर का है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें जो जो वर्ड आएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजेसिव, इंडेफिनिट एंड इंटेरोगेटिव। प्रोनाउन में डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स एक स्पेशल एडजेक्टिव होता है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? स्पेशल एडजेक्टिव। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? स्पेशल एडजेक्टिव। तो डिटर्मिनर्स में और ये जो प्रोनाउन लिखे हैं इसमें यही फर्क है। डिटर्मिनर्स हो गए एडजेक्टिव और ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद हम किसी भी प्रकार के नाउन का यूज नहीं करेंगे। प्रोनाउन के बाद किसी भी प्रकार के नाउन का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रोनाउन का यूज ही नाउन की जगह पे करते हैं। सो वी विल नॉट यूज एनी नाउन आफ्टर प्रोनाउन, बट in adjective we will use noun after the given word, that is determiners। हम इस जैसे इसमें क्या आएगी? इसमें आएगी दिस दैट दीज दो आएगी ना। तो दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन रहती है तो वो कहलाएगी डिटर्मिनर्स, नाउन नहीं रहती है तो वो कहलाएगी प्रोनाउन। बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। किसको देखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। एट फर्स्ट राइट, देन अगेन वी विल स्टार्ट पर्सनल प्रोनाउन। Those who have written, they will only try to learn. There is no need to write. You have written? Very good. You are very hard and fast. Now you can make heading personal pronoun. Okay, you can make heading personal pronoun. जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आप भी लिख सकते हैं। जब समझाने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे। लिख रहे हैं उस समय आप लिख सकते हैं। ओके, थोड़ी सी टाइम की सेविंग होगी। अगर आप एक पर्सनल प्रोनाउन को समझ लेते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन को समझने से कितने हम लोग प्रोनाउन को समझ लेंगे? एक पर्सनल प्रोनाउन को समझने से हम लोग कितने प्रोनाउन को समझ लेंगे? 4। कितने? 4। इसमें से अगर हम एक पर्सनल प्रोनाउन को समझ लेंगे तो आपको पर्सनल प्रोनाउन भी क्लियर हो जाएगी, इंपैटिक भी क्लियर हो जाएगी, पॉजेसिव भी क्लियर हो जाएगी और रिफ्लेक्सिव भी क्लियर हो जाएगी। पर्सनल प्रोनाउन से ये चारों चीजों को अच्छे से समझा जा सकता है। नाउ शैल आई गो अहेड? आपको सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो पूछ ले, नहीं तो सेंटेंस की एक टेस्ट रखी जाएगी। पेपर ऑलरेडी तैयार है। तो सिंपल क्वेश्चन रहेगी, अफर्मेटिव निगेटिव बनाने रहेगी, सेंटेंस फाइंड आउट करना रहेगा, जंबल वर्ड को अरेंज करना पड़ेगा। ऐसे जंबल वर्ड जो है पूछे जाते हैं क्लास 9 में, राइट? जंबल वर्ड को सेंटेंस के रूप में फॉर्म करना क्लास 9 में पूछे जाते हैं। याद है? याद किए हैं कि अगरबत्ती दिखाए हैं? याद है? खड़े हो जाइए फिर। याद है तो कुछ शुभारंभ किया जाए। आप हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता दीजिए कौन कौन है। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल तो नहीं पूछ रहा हूं मैं तो मैं तो रिफ्लेक्सिव पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, सेल्फ वाला सारा। ठीक, बैठ जाइए। चलिए बाबू, हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या है। टॉपिक है हमारी पर्सनल प्रोनाउन। पहली क्वेश्चन है, देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउन। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस। 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कितने होते हैं?
7 I, we, you, he, she, it, they. I can hear some sound. हाँ, ये कैसे फील हो गया भाई? Come in. There are 7 personal pronouns. How many personal pronouns are there? 7. There are 7 personal pronouns. I, we, you, he, she, it, and they. I and we, it is known as first person pronoun. It is known as first person pronoun. You is known as second person pronoun. He, she, it, and they are known as third person pronoun. You have to keep in your mind because you have to use it in subject verb agreement, and while you are changing direct narration into indirect narration, you have to change sub, first person according to subject, second person according to object, and third person it will no change. So you have to keep it in your mind. So how many personal pronouns are there? There are three kinds of personal pronoun. Three kinds of there are three kinds of personal pronoun. How many? Will you answer which one? Very good. First person, second person, and will you tell me if someone asks you what is first person, then what is first person? Your definition will be one who speaks. One who speaks, जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन. One who speaks is called first person. One who speaks is called first person. Second, one who listen is called second person. One who listen is called second person. One who listens, it is called second person. Okay. Now, if someone asks you what is third person, then whom we talk about, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं. whom we talk about, whom we talk about, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन. ओके, क्लियर? सो हाउ मेनी पर्सनल प्रोनाउंस आर देयर? हाउ मेनी पर्सनल प्रोनाउंस आर देयर? 7. नेम. I, we, you, he, she, it, they. There are three kinds of personal pronoun: first person, second person, and third person. One who speaks, it is called first person. Or in first person, I and we will come. Okay, I will be singular and we will be plural. In second person, you, it will be both singular and plural. And in third person, he, she, it, they become singular and they become plural. In third person, whom we talk about, इसका डेफिनेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं. क्लियर है? ओके, राइट. देन अगेन वी विल सी केस ऑफ प्रोनाउन. हम लोग प्रोनाउन के केस देखेंगे, वहीं से आपका 4 काइंड्स क्लियर होगा. इट्स पेज नंबर 5, पेज नंबर 4 आई थिंक. 3 पेज आपकी छुट्टी है. प्रोनाउन के डिफिनेशन, 1 एग्जाम्पल, प्रोनाउन के काइंड्स, और ये फर्स्ट काइंड है उसके. प्रोनाउन के फर्स्ट काइंड है, आप 1 पेज छोड़ करके लिख सकते हैं. ओनली 1 पेज. क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या बात हो रही है? आगे घूमिए. क्लास में बैठे हैं, पीछे मुड़ के बात कर रहे हैं.
complete. There are four cases of pronoun. How many? There are four cases of pronoun. There are four cases of pronoun. अच्छा, ये जो मैं फोर केस ऑफ प्रोनाउन बता रहा हूं, तो प्रोनाउन का यूज जो है हम लोग नाउन के जगह पे करते हैं ना। तो ये सारे के सारे केस जो है आपके नाउन में भी लागू होंगे, ठीक है। यानी ये जो फोर केस है वो आपको नाउन में भी यूज हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट का नेम है बाबू सब्जेक्टिव केस। फर्स्ट का नेम क्या है? सब्जेक्टिव। उसका सेकंड नेम क्या है? नॉमिनेटिव। क्या नाम है उसका? तो कभी कभी सब्जेक्टिव लिखा रहेगा, कभी कभी क्या लिखा रहेगा? नॉमिनेटिव। सेकंड को बोलते हैं बाबू ऑब्जेक्टिव या वोकेटिव। क्या बोलते हैं बाबू? ऑब्जेक्टिव एंड वोकेटिव। ऑब्जेक्टिव एंड वोकेटिव। ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग वोकेटिव केस भी बोलते हैं। थर्ड है बुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। और फोर्थ है बुआ पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो अभी हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। हालांकि हम लोग एडजेक्टिव को भी देखेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमको समझना जरूरी है। तो कितने प्रकार के केस हो गए? फोर प्रकार के केस हो गए। ओके, अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर वह वर्ब का सब्जेक्ट होगा, वर्ब का क्या होगा? सब्जेक्ट, तो उसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते? तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे ही राइट्स अ पोएट्री। ही राइट्स अ पोएट्री। सही है ना? सेंटेंस सही है? क्या गलती है? हाँ, अब हुआ यहां से ना ए हटा दीजिए अगर पोएट्री लिखना है तो। नहीं तो एक बच्चे ने और कहा है कि अगर और रखना है तो आप क्या लिखिए? पोएम। ध्यान रखेंगे, हम गलती भी लिखते हैं, आपको ध्यान रखनी है। ही राइट्स पोएट्री और ही राइट्स अ पोएम दोनों सही है। अगर हम पोएम लिखेंगे तो इसके साथ अ लिखेंगे, पोएट्री लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। क्लियर? इसमें ही जो है बाबू ये नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है? क्यों? क्योंकि ये वर्ब के साथ एक्शन कर रहा है। वर्ब के साथ क्या कर रहा है? एक्शन। सेकंड जो है बाबू आपकी पोएम, इस पे एक्शन क्या हो रही है? हो रही है। तो जो सब्जेक्ट वर्क करता है उसको सब्जेक्टिव केस, जिस पे वर्क होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है दिस इज माई हाउस। दिस इज माई हाउस। अब यहां पे दिस को छोड़ देते हैं, हम यहां पे देखते हैं माई को। किसको देखते हैं? माई को। हमने अभी आपको बताया है कि जिसके बाद नाउन रहेगी, जिसके बाद क्या रहेगी? वो कहलाएगी एडजेक्टिव। क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगी? इसके बाद नाउन है ना, तो नाउन होगी तो वो ऑलवेज क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव। वो कभी भी प्रोनाउन नहीं कहलाएगी। इसी सेंटेंस में हम देखते हैं दिस इज माइन। दिस इज माइन या दिस हाउस इज माइन। दिस हाउस इज माइन। तो यहां पे हमने जो यूज किया है माइन, यही है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। अगर पोजेशन शो करेगा, क्या करेगा? पोजेशन शो करेगा। उसके बाद अगर नाउन रहेगी तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन शो करेगा, नाउन नहीं रहेगी तो पॉजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, एक है दिस और ये है हाउस, है ना। इसमें दिस क्या है बता दीजिए? ये एडजेक्टिव है। हम अभी आपसे काइंड नहीं पूछे हैं, बट ये जानना था कि वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। गुड, आप ट्राई किए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आप इसको लिखिए। अब हम एक ग्रिड बनाएंगे और ग्रिड में सारे चीजों को आपको बता देते हैं। ओके, आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे तो फिर वही जब आप नरेशन चेंज करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। कहीं कहीं बुक्स में जो है बाबू इन दोनों को एक जगह मिला देगा। क्या करेगा? इन दोनों को एक जगह क्या हुआ? इन दोनों को मिला देगा तो वो पॉजेसिव केस हो जाएगा। तो काइंड हो जाएंगे थ्री। काइंड क्या हो जाएंगे? थ्री।
फिर हमको पढ़नी तो 4 है, तो काहे हम 3 पढ़े? हिंदी में कितने केस है पता है? बिल्कुल सही है। केस का मतलब होता है कारक। तो हिंदी और संस्कृत में 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है जी। अरे यही ना है, तो वही 8 है। इसको हम लोग शॉर्ट करके इसमें, इंग्लिश में भी पहले 8 थी। कितने थी? 8। लेकिन 8 पढ़ाया नहीं जाता था, धीरे धीरे घटा करके जो है इसको 4 पे ला दिया गया। अब 4 को घटाकर 3 पे ला दिया गया। अगले दिन में कुछ ये भी गायब हो जाएंगे जहां तक उम्मीद लग रही है। इंग्लिश में डिमोशन हो रही है। हैव यू रिटन? अच्छा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड करना है। हम एक बच्चे से पूछे हैं, बताया नहीं है। इसमें आपको फाइंड करनी है। ओके, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अच्छा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझते हैं ना? एक सेंटेंस में अभी तो बता दिया हूं कि जो काम करेगा उसको सब्जेक्ट, जो भी काम करेगा सब्जेक्ट, जो बच जाएगा सारा प्रेडिकेट। जो काम करेगा या जिसके बारे में बताया जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, पहला डिफिनेशन। दूसरा, जिसके बारे में कोई चीज बताया जाता है, जिसके बारे में कोई चीज बताया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। रेस्ट जो भी बच जाता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दिमाग ये लगाना है कि क्या स्वीट के साथ आर का यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। स्वीट अनकाउंटेबल नाउन है। स्वीट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसके साथ तो आर का यूज होना नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। द यूजेज ऑफ, ये बड़ा अच्छा कोर्स है कि वह व्यक्ति जो मुसीबत का सामना करता है उसको उसका जो परिणाम मिलता है बड़ा स्वीट मिलता है। द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है बैड टाइम, डिफिकल्ट टाइम, ट्रबल। तो जो बैड टाइम को, डिफिकल्ट टाइम को, ट्रबल को यूज करता है उसका, उसको परिणाम क्या मिलता है? स्वीट मिलता है। और नहीं तो आप लोग तो बेहतर हमसे समझदार है क्या, है ना? चलिए अब हम ना क्या बनाएंगे यहाँ पे? ग्रिड बनाएंगे। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड ही ना बोलते हैं। देखिए तो कॉलम, कॉलम बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ओके, फर्स्ट में लिखेंगे, देखिए बाबू, इसको हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव केस। इसको पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस। इसको पढ़ेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। इसको पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। और यही है इम्फेटिक, या जिसको हम इम्फेसाइजिंग कहते हैं, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव। इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए REF लिखा हुआ है। ओके, ध्यान रखिए, हम इसलिए इसको लिखा रहे हैं कि कोई हमको नारेशन में कहेगा लिखाने के लिए, तो मैं बिल्कुल लिखाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि नारेशन में इसकी बहुत जरूरी है, इसलिए अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहला हम इसमें लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो आई भी पर्सनल प्रोनाउन है और मी भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन हम लोग उसको अगर काउंट करना है तो 7 ही काउंट करेंगे, लेकिन आई के फॉर्म के रूप में मी भी पर्सनल प्रोनाउन ही माना जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बुआ? अब पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। इन दोनों में अंतर क्या होगा? माई और माइन में अंतर क्या होगा? माई जो है नाउन के किस क्या आएगा? पहले, जबकि माइन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना है। ओके, और इसको बोलते हैं बाबू माई सेल्फ। क्या बोलते हैं? सेल्फ रिलेटेड वर्ड को इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव। अगर आपसे कोई पूछे, देखिए इम्फेटिक भी वही है, रिफ्लेक्सिव भी वही है, यूज में अंतर है। क्या है? यूज में अंतर है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो और उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, क्या नहीं दिया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा किस पे? सब्जेक्ट पे। किस पे? सब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा कहां पे? ऑब्जेक्ट पे।
अगर ऑब्जेक्ट होगी तो उसको बोलेंगे इम्फैटिक। क्या बोलेंगे? यानी कि वो असर डालेगा कि सामने वाला जो काम है वो मैंने किया है, वो इम्फैटिक कहलाएगा। इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। सेकेंड है बाबू वी। क्या है? वी का क्या बनता है हुआ? अस। और यहां क्या बनेगी? आवर। इसके साथ क्या रहेगी? नाउन। और यहां क्या बनेगी? आवर्स। और यहां बनती है बुआ आवर सेल्फ। क्या बनती है? बनती है ना? आवाज नहीं आ रही थी ना। क्या बनेगी यहां बुआ? सेल्फ। क्या बनेगी? हाँ। नेक्स्ट है बाबू यू। क्या है? यू। इसका ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा? यू। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर। क्या बनेगा? योर। और यहां क्या बनेगा? योर्स। और यहां क्या बनेगा? योर सेल्फ। क्या बनेगा बुआ? क्या ठीक है? और भी कुछ बनेगा? इसका बुआ दोनों बनेगा। ठीक है, सेल्फ्स भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा इसका योर सेल्फ? अभी बताया हूं सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। जेंडर के साथ सिंगुलर प्लुरल दोनों है। नंबर के लिए, नंबर की बात करता हूं वर्ब के साथ, वर्ब के साथ ऑलवेज प्लुरल, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ ऑलवेज प्लुरल। लेकिन नाउन के साथ, किसके साथ? नाउन के साथ वह सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। वर्ब के साथ ऑलवेज प्लुरल है। ओके, नेक्स्ट। वो सेकंड पर्सन हो गई। अब थर्ड पर्सन में क्या आएगी? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। हिज नहीं, हिम। यहां पे क्या आएगी बुआ? हिज। और यहां भी क्या आएगी? तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हिज के बाद नाउन आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। और यहां क्या आएगी? हिम सेल्फ। तो जहां जहां सिंगुलर रहेगा वहां पे आएगी सेल्फ, और जहां प्लुरल होगी वहां पे हो जाएगी सेल्फ। क्योंकि सेल्फ का प्लुरल क्या होता है? सेल्फ। सी का क्या होता है बुआ? हर। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है? हर्ष, हर। यानी यहां भी दोनों क्या हो गई? सेम। अंतर क्या रहेगा? इसके बाद नाउन नहीं रहेगा, इसके बाद नाउन रहेगा। और यहां हो जाएगी बुआ हर्ष, और यहां पे हर सेल्फ, क्योंकि ये सिंगुलर है ना। ओके, इट क्या है बुआ? इसका भी ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? इट। और यहां पे क्या आएगी बुआ? इट्स। और यहां पे क्या आएगी बुआ? यहां भी इट्स आएगी। क्या आएगी? आएगी ना? आएगी? नहीं आएगी बुआ, एक कॉलम रहेगी खाली। ये कॉलम क्या रहेगी? खाली। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा तो नहीं जाता है, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि विच पर्सनल प्रोनाउन हैज नो पॉजेसिव प्रोनाउन? इट। ओके, वेरी गुड। और यहां पे क्या हो जाएगी? इट सेल्फ। क्लियर है? अब एक क्या बच गई लास्ट में? दे। तो दे का बनता है बुआ देम। और यहां पे क्या बनेगा? देयर। और यहां पे क्या बनेगा? देयर्स। और यहां बनेगी देम सेल्फ। देखिए, एक एक प्रोनाउन और है जिसका नाम है वन। क्या नाम है? हालांकि है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका मतलब होगा, वन का मतलब, कोई मेरे को बता दो भाई, वन का मतलब? अरे हमेशा से पढ़ते आए हैं एक, ये प्रोनाउन है ना। वन का मतलब क्या होगा? आपको हम पहला दिन जब हम आपको लेटर पढ़ाए थे तो लेटर में ए पढ़ाए थे। उसका 4 गो सिनोनिम लिख के दिए थे, याद है? उसी में से एक इसका मीनिंग है एनी। क्या है? एनी। तो वन का मतलब होता है एनी। यहाँ पे वन का मतलब क्या है? यहाँ पे वन का मतलब प्रोनाउन में होता है एनी। वन नहीं समझिएगा ना तो बस गया। तो यहाँ बुआ इसका ऑब्जेक्ट भी बनेगी वन, और यहां बनेगी बुआ वंस, ये वाला वंस। ठीक है, इसमें एपोस्ट्रोफी लगेगी। क्या लगेगी? और यहां भी बनेगी वही, यहां भी एपोस्ट्रोफी वाला ही रहेगी। और यहां क्या रहेगी? वन सेल्फ। क्या रहेगी बुआ? तो ये सारा फॉलो करता है, होना चाहिए इसको पर्सनल प्रोनाउन में, लेकिन है कहां पे? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में है। कहां पे? तो ये सही होता है। ध्यान रखेंगे बुआ, इसमें 3 चीजों पे हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। एक ये वाले वंस पे, एक ये वाले देयर पे, और एक वाले ये इट्स पे। थोड़ा सा यहाँ पे जगह खाली है, यहीं पे लिखते हैं। देखिए, एक वर्ड है इट्स,
ये वाली, और एक वर्ड है इट्स, ये वाली। इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। ये पहले भी बताया जा चुका है कि इसका मतलब होता है इट इज, क्या होता है, और ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आना कंपलसरी है। ओके, दूसरा है बुआ देयर, क्या है बुआ, और ये भी है एक देयर, क्या है बुआ, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है, क्या है ये, क्या है ये, एडवर्ब, जो प्लेस को शो करता है, किसको शो करता है, प्लेस को। और एक है बुआ ये वंस, ये वाला, एक ये बुआ वंस एपोस्ट्रोफी वाला, एक ये भी है वंस, क्या है बुआ, दोनों में भी अंतर है। अब आप मैथ पढ़े होइएगा तो मैथ में ये वाला नहीं चलती है, मैथ में ये चलती है। हाँ? 2 का पहाड़ा आता है तुम लोगों को, 2 का टेबल आता है, चलो 2 का टेबल जो है पहला पढ़ के सुनाइए, तो सुनाइए। 2, बस बस बैठ जाइए यहीं पे, बस गलती वहीं पे है, ठीक है। ये जो है बुआ 2 है, आई क्या है, इसको क्या पढ़ना है, 2 1 2 पढ़नी है। हम लोग पढ़ते क्या है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। हम लोग भी बच्चे को सिखाते हैं तो जा ही पढ़ के सिखाते हैं। हालांकि इंग्लिश के टीचर है, बच्चे को बता देते हैं कि बुआ ये जा नहीं है, वंस है, क्या है वो, वंस है। इसमें 2 जो है, 2 को कितना टाइम यूज करते हैं, 1। या आप ऐसे, आप ये भी जानते होइएगा कि मल्टीप्लिकेशन जो है रिपीटेड एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें 2 वंस है, मतलब 1 की संख्या कितना है, 1 की संख्या 2 है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 2 1 2, 2 1 2। पढ़ते हैं 2 1 2, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन यही है 2 1 2। ओके, 2 2 4, 2 2, इसको 2 पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, आप बोले 2 जा पढ़िए अलग बात है, इसको क्या पढ़ते हैं, 3, क्या पढ़ते हैं, 3 4 5 6, ऐसे करके पढ़नी है, 6 नहीं 6 ऐसे करके पढ़नी है। तो यही है, तो ध्यान रखेंगे इसमें और इसमें अंतर है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म बनेगा, जबकि ये क्या बनेगा, ये आपका न्यूमरल के फॉर्म में आ जाएगी, ये नंबर को शो करेगा, जबकि ये आपका एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। ओके, क्लियर है। इसको पहले उतारिए, कुछ एग्जांपल इससे भी बताएंगे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे आपसे। तो इसमें कितने काइंड क्लियर हो गए समझ आइए, ये दोनों मिला के पर्सनल, ये दोनों मिलाकर पॉजेसिव, और ये हो गए एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव। 4 क्लियर हो गए। ओके, अगर आप लिख लेंगे तो हम आपको रेसिप्रोकल पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसमें 2 ही टर्म है। कितने टर्म है, 2। आज के लिए उतना ही 5 रहेगा, नेक्स्ट 5 के लिए आपको नेक्स्ट संडे की इंतजार करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, जाइए अच्छे से टेस्ट दीजिए। क्या टेस्ट को एंजॉय करते हैं कि नहीं आप लोग, नहीं करते हैं। हम देखो बुआ, एग्जाम को तो हम भी एंजॉय नहीं करते थे, एग्जाम पनिशमेंट लगता था, एग्जाम को हम लोग टेस्ट कहते हैं ना, लेकिन मैं वीरेंद्र सहवाग का बड़ा फैन हूं, तो जब टेस्ट मैच देखता था ना तो बड़ा मजा आता था। तो मेरे को बाद में समझ में आया कि टेस्ट मैच में मजा है तो टेस्ट देने में भी मजा है। वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट मैच देखे हैं, कितने लोग देखे हैं, उनको मजा ही मजा आता होगा, लॉजिक वही है। नहीं नहीं है, दोनों में मजा है, दोनों में मजा है। बल्लेबाज बस वीरेंद्र सहवाग जैसा होना चाहिए, बल्लेबाज कैसा होना चाहिए, यानी आपके अंदर हुनर होगा तो जो टेस्ट एग्जाम है वो भी टेस्ट मैच जैसा दिखाई देगा। आप लोगों को लिखा दिए थे ना, आप तो लिखे थे ना, हाँ लाइए तो चेक कराइए। तो आप, मैं तो खाली हूं तो चेक कर लेता हूं। वो लेटर्स कहाँ गए, लेटर, मेरा भी एक ही क्लास पढ़ाने का मतलब एक ही टॉपिक पढ़ाना है, ज्यादा नहीं पढ़ाना है। इसको याद भी कर लेनी है, कलेक्शन तो हो गई अच्छी,
पर याद करिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। अभी इस बार क्लास में होगी आपकी ज्यादा वर्किंग। आपकी तो कॉपी कॉपी छूटी जाती है ना, इनसे सीखिए आप, कॉपी डेली छोड़ देते हैं। If you have written, you will pay attention to your notebook. There is no need to talk. है ना, थोड़ा से है तो लास्ट पहले का है ना। अभी इस बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। बस हाँ, अभी आप नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। अच्छा तो उसको पीपीटी चाहिए, सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा, हम आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा से लिखे है ना। ओके ओके। बुआ क्लोज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्लोज कर लीजिए। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बताइए। नहीं गलत है, फिर से मैथमेटिक्स की स्पेलिंग, फिर से। MATH, यहां तक ठीक है, आगे बढ़िए। बैठ जाइए बैठ जाइए। इसलिए बउआ, इसलिए कहा जाता है कि एक बार में एक ही चीजों पर ध्यान रखनी है। आपको बताना है, स्टैंड अप, क्वेश्चन चेंज हो गए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कौन सा नाउन है? क्वेश्चन पढ़ाई गई है ना। सिट डाउन। यू आर राइट, प्रॉपर नाउन है, बट गलत है। यू आर राइट रॉन्ग है, आप राइट रॉन्ग है, यू आर राइट रॉन्ग। हाँ, राइट रॉन्ग है। इसको एक्चुअली मैं एक्चुअली वो फिगर ऑफ स्पीच भूल गया जो मैं यूज कर रहा था। एक ऑक्सीमोरन, मैंने ये जो सेंटेंस बोला है वो ऑक्सीमोरन का एग्जांपल है। जब एक ही सेंटेंस में हम एक ही वर्ड का अपोजिट भी यूज करते हैं, एक ही वर्ड का अपोजिट यूज कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। तो यू आर राइट रॉन्ग, आधे सही मतलब आप सही गलत है। मैथमेटिक्स कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, सिट डाउन। यस बाबू, अब आप ही का टर्न है। मैथमेटिक्स कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। मैथमेटिक्स कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बताओ कैसे काम चलेगा? मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको बताए थे साइंस के जितने, साइंस रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साइंस रिलेटेड जितने सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, ये सारे के सारे क्या है? स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक्स भी वही है, इकोनॉमिक्स भी, ये सारे के सारे क्या है आपके? एब्स्ट्रैक्ट। लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉपर नाउन, लैंग्वेज रिलेटेड आपको बताया गया था, लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चीज को ध्यान रखे, बैठिए, सिट डाउन, वेरी गुड। नाउ हैव यू रिटन? अच्छा, कुछ हम लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। पहले क्वेश्चन होगी, विच पर्सनल प्रोनाउन, विच पर्सनल प्रोनाउन हैज सेम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म? विच पर्सनल प्रोनाउन हैज सेम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म? यू एंड, यू एंड, क्वेश्चन था विच पर्सनल प्रोनाउन हैज सेम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म।
सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू का और इट का सेम है। क्लियर? नेक्स्ट, विच पर्सनल प्रोनाउन हैज सेम पोजेसिव फॉर्म? विच पर्सनल प्रोनाउन हैज सेम पोजेसिव फॉर्म? ही। ही पर्सनल प्रोनाउन है जिसका पोजेसिव फॉर्म हिज दोनों में क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सनल प्रोनाउन हुज ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म इज सेम? पर्सनल प्रोनाउन में है सी, और ये ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर है? आई थिंक और अब कोई इशू आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? अच्छा बाबू, कुछ सेंटेंसेज है जिसमें वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। ओके बाबू, विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट वन। इस सेंटेंस में फर्स्ट वन करेक्ट है जबकि सेकंड वन इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जबकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये ऑलरेडी एक नाउन है। वास्तव में अगर आपसे कोई पूछे ये वंस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये है नाउन। तो एक नाउन के जस्ट बाद दूसरा नाउन नहीं आ सकता है, और आने का एक है कि उसके साथ केस आएगा। क्या आएगा? केस। दो नाउन कभी भी आएगा तो केस के साथ आएगा, तो हम लोग वहां पे पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पॉजिटिव केस। तो ये आपकी गलत है और ये आपकी सही है। नेक्स्ट, देयर इज अ well in the well. There is a well in the well. There is a well in the well. अब well का मतलब जानते हैं? अच्छा, well जो है ना, वैली का शॉर्ट फॉर्म है। well क्या है? वैली का शॉर्ट फॉर्म है। ताजुब कब हुई कि मैं एक बार क्रिस्टोफर मार्लो का एक पोएम पढ़ रहा था, द पैशनेट लव सॉन्ग ऑफ शेफर्ड। उसमें एक वर्ड आ गई वेल। अब ना मैं डिक्शनरी खोजने लगा, और डिक्शनरी खोजा, मेरे को कहीं मिला नहीं है वर्ड। मैं डिक्शनरी खोजने लगा, मेरे को वर्ड मिला नहीं। मैं कहा कि भाई कैसा वर्ड है कि मिल नहीं रहा है, और जाके मतलब सर को कहें कि सर ये तो मिल ही नहीं रहा, हम क्या करें? सर का हाँ बउआ, उस समय गूगल वाला 2015 में जब हम ये पढ़ रहे थे, उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं थी। ठीक है, इतना चीजों को जान लेनी है। 2015 में भी बिना मोबाइल के पढ़ रहे थे। 2016 में पहली बार मोबाइल खरीदे हैं। ठीक, समझ में आ गई? सर बताएं कि बउआ वैसे कहते थे, पूर्वक इवेल नहीं है, इवेली का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए नहीं मिल रहा था। तो डिक्शनरी मेरे पास थी, लेकिन मेरे पास गूगल नहीं थी। तो ये है बुआ वेल। अब बताइए इसमें कौन सा सही है, देयर और देयर? ये वाला ना? नहीं, ओके, ये वाली देयर सही है। क्लियर? ओके, इसमें बताइए कौन सी सही है? सेकंड वन। इट्स 10 o'clock। इट्स 10 o'clock। इस चीज, छोटे छोटे चीजों को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? पर्सनल, अच्छा इसको राइट कर लीजिए। दो ही एग्जाम्पल है, रेसिप्रोकल पढ़ाएंगे और आपको छुट्टी दी जाएगी। ओके, write as fast as possible for you because I have to teach reciprocal. Okay, ध्यान रखिए बाबू, हमने आपको 4 काइंड ऑलरेडी पढ़ा दिया है, 5th काइंड पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, जो रेस्ट 5 है वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ा दिए जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन।
There are only 3 examples, not many. आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अभी जो पढ़ाया हूं पर्सनल प्रोनाउन वो आपको याद तो रहनी ही चाहिए। डिटरमिनर्स के दृष्टिकोण से जो लास्ट 5 है वो आपको ध्यान रखनी है, इसलिए आपको नेक्स्ट 5 जो है अगले क्लास में पढ़ाए जाएंगे। लास्ट है आपका आज का लास्ट है बाबू रेसिप्रोकल। विच वन? अगर आपसे कोई पूछे रेसिप्रोकल क्या है, लिख दीजिएगा इच अदर एंड वन अनदर। इच अदर एंड वन अनदर, वन अनदर। इसको बाबू इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। ओके, ईच अदर वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। You are most of you are making noise. ये रेसिप्रोकल जो है आपका ईच अदर वन अनदर, ये नंबर बेस है। कौन सा बेस है? नंबर बेस। इसका यूज आप करेंगे टू के लिए। किसके लिए? और इसका यूज करेंगे मोर देन टू के लिए। किसके लिए? मोर देन टू, मोर देन टू। तो रेसिप्रोकल का यूज कितने के लिए करेंगे? रेसिप्रोकल का यूज, रेसिप्रोकल में कौन कौन आएंगे? ईच अदर एंड वन अनदर। रेसिप्रोकल में कौन कौन आएगा? रेसिप्रोकल कितने के लिए यूज करेंगे? टू के लिए। और ईच अदर कितने के लिए यूज करेंगे? टू। और वन अनदर का यूज? ओके। Raman and Prabhat are fighting with each other or one another? Each other, because here we have used only two. लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो टू को भी शो करते हैं और मोर देन टू को भी शो करते हैं। जैसे अगर हम यहां पे लिख दे वी, क्या लिखेंगे बाबू? तो वी का मतलब दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग ईच अदर का भी यूज कर सकते हैं और वन अदर का भी यूज कर सकते हैं। यू का मतलब होता है आप दोनों, आप लोग या आप सब। तो इसके लिए भी हम टू का भी यूज, ईच अदर का भी यूज कर सकते हैं और वन अदर का भी, और दे के लिए भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो सब्जेक्ट को भी पहचाननी है कि किसके साथ ईच अदर और किसके साथ वन अदर का यूज करेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, ऑप्शन में दोनों आ जाए, मान लेते हैं एक ही सेंटेंस हो और ऑप्शन में दोनों आ जाए, तो वन अनदर के साथ जाना है। ठीक। ऑलरेडी पैसेज में दिया गया हो तो पैसेज में पढ़ेंगे कि पैसेज में कितने के बारे में बात की जा रही है, दो या दो से अधिक। अगर दो से अधिक होगी तो पैसेज पढ़ के भी आप वन अनदर करेंगे। अगर नहीं दी है तो हर हाल में इसके साथ वन अनदर आएगा। क्लियर है? enough for today, enough for today, right? And that's all for today.